हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @प्ले वे लर्न। बच्चों, आज हम केवी का जो 6th क्लास का इंग्लिश का जो है वो हाफ ईयरली का सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं फर्स्ट में जो है वो क्या दिया गया है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोला गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है। वॉकिंग इज अ प्लेजर when we are in a vehicle. Our attention is fixed on the road. There is no time to spare for the things on the either side of the road. A walker can however enjoy the sights of either side if he so like. He can change his speed. He can walk slowly when there is much beauty around. He can go fast when he wants his walkly to be an exercise for his limbs as it regulates our blood circulation. Walking also gives us a feeling of freshness and as well. However, no young person should walk thinking that it is an exercise. It will kill all the pleasures. Moreover, there are many other exercises that are good for health. Walking should be made a habit for enjoyment. One should feel relaxed and not tired after a good walk. We should walk only when the weather is fine. We should avoid walking when it is hot or misty. ठीक है। तो फर्स्ट बोला है, क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, वॉकिंग इज अ, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? प्लेजर। क्या आ जाएगा आपका आंसर? प्लेजर। नेक्स्ट है, व्हेन वी आर इन अ व्हीकल our attention is fixed on the road. Walking should be made a habit for enjoyment. कैसी हैबिट बनाता है? enjoyment की। ठीक है। What can we walker enjoy while walking? तो क्या enjoy करता है जब वो walking करता है? तो enjoy the side on either side. ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर, enjoy the sides on either side. ठीक है। अब नेक्स्ट है, राइट टू बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग। तो टू बेनिफिट हो जाएंगे आपके, रेगुलेट आवर ब्लड सर्कुलेशन एंड फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस। तो ये जो है आपके टू इसके बेनिफिट हो जाएंगे। इन विच वेदर शुड वी अवॉइड वॉकिंग? कौन से वेदर में आपको अवॉइड करनी चाहिए? वी शुड अवॉइड वॉकिंग व्हेन इट इज़ हॉट और मिस्टी। ठीक है। अब नेक्स्ट है, वॉकिंग इज आल्सो गुड एक्सरसाइज और हैबिट और आवर फॉर आवर लिम्स। सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। चूज अ वर्ड फॉर पैसेज विच हैज सेम इन मीनिंग एज फिक्स और एडजस्ट। तो फिक्स और एडजस्ट का आपका हो जाएगा रेगुलेट्स, रेगुलेट्स। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा आपका? रेगुलेट्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द पैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसमें एक और आपके पास क्या दिया है? पैसेज दिया है। Thus the king was a greedy person. He loved gold more than anything in the world. He had lots of wealth, but he was never really a happy person. One day, good news comes to Midas. Midas had a help good. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, what kind of man was Midas? तो वो हो जाएगा आपका a greedy person who came to Midas on one day. तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुड virtues. Why did virtues offers him a gift? Because he had helped to God once. ठीक है। अब अच्छे से रीडिंग कर लेना इसकी, क्योंकि अगर मैं पूरा अच्छे से रीडिंग करने लगूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। Why did virtues after him a gift? Because he had helped the God once. What was Midas' wish? तो to turn anything into gold. What do you think? Because virtues laughed before granting Midas a wish.
because Vauchus knew the future conscious of his wish. अब नेक्स्ट है राइट द वर्ड्स फॉर पैसेज द मीन ऑफ द सेम. लॉट ऑफ मनी का हो जाएगा आपका वेल्थ और गेव का हो जाएगा ऑफर्ड. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइटिंग एंड ग्रामर. यू आर सुमन अनिल of class 6. You have lost your lunch box during the recess in school playground. Write a notice for your school notice board. तो ये हो जाएगा आपका नोटिस केवी स्कूल. आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो, यहाँ पे डेट डाल सकते हो. ठीक है. टिफिन बॉक्स लॉस्ट. This is to inform all students that a lunch box has been lost in the school playground during the recess hours today. The bright red tiffin box has a Spider-Man stickers on it. The finder is requested to submit the tiffin box to the undersigned. The finder will be given a treat in the canteen. यहाँ पे आपको नाम दिया है स्पेशल. लड़की होगी तो सुमन लिखेंगे और लड़का बॉय होगा तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे ऑब्लिक में लिख देती हूँ आपको अनिल. ठीक है. तो इन दोनों में से कोई एक नाम लिखना है. यहाँ पे मैंने रेड कलर लिखा है. आप कोई और कलर भी इसमें चूज़ कर सकते हो जो आपका टिफ़िन का हो या जो आपको अच्छा लगता है. स्पाइडरमैन स्टिकर के बजाय आप कोई और स्टिकर यूज़ कर सकते हो यहाँ पे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एज अ हेड बॉय गर्ल ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड अबाउट एन इंटर हाउस पोइट्री रेसिटेशन कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड इन स्कूल. यू आर प्रियंका. ठीक है. तो इसका नोटिस आ जाएगा. आप यहाँ पे स्कूल का नाम लिखोगे अपने का, यहाँ पे डेट डालोगे. इंटर हाउस पोइट्री कॉम्पिटिशन. दिस नोटिस हैज़ बीन पुट टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8 that an inter house poetry recitation competition has been organized 2nd October 2023. The details are venue school auditorium, time 11 a.m, date 2 October 2023. The theme and title of poetry recitation competition are peace. Interested students can give their name to their English teachers and visit the English lab for audition in the break time. Contact the undersigned for further detail. और यहाँ पे XYZ हेड बॉय प्रिया, या अगर आप गर्ल हैं तो हेड गर्ल प्रियंका. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है a summary of story is given below. Fill in the blanks to complete it taking appropriate phrases for the box. A dog stronger than anyone else, all strongest of all. A wolf, the weir, afraid of man, his own master. A lion. तो यहाँ पे आपके पास स्टोरी दी हुई है, इसको आप फिल करोगे. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डॉग हु इज टू बी हिज ओन मास्टर. ही डिसाइड टू फाइंड अ मास्टर स्ट्रोंगर देन anyone else. First he found a wolf, but the wolf was afraid of the weir. The dog thought that the weir was the stronger of all. After some time the dog met a lion who seemed the strongest. He stayed with the lion for a long time. One day he realized that the lion was afraid of man. To this day the dog remains man's best friend. ठीक है. अब नेक्स्ट है कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग phrases with the suitable words for the bracket. A dash of sheep, a fleet of sheep, a bunch of flowers. Rearrange the following words to from meaningful sentence. माई कंट्री इंडिया इज. तो इसका हो जाएगा इंडिया इज माई कंट्री. सेकेंड है प्लेइंग इन आर पार्क चिल्ड्रन द. तो हो जाएगा आपका द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन पार्क, इन द पार्क. ठीक है. इन पार्क.
यूज द करेक्ट डिग्रीज एंड एडजेक्टिव गिवन इन ब्रैकेट। ही डिसाइड टू वर्क हार्ड का क्या हो जाएगा, हार्डर देन बिफोर। नेक्स्ट है ही बिगन टू चॉप इवन अर्ली का हो जाएगा एलायर। दिस मेड तारो देन एवर सैड, सैड का हो जाएगा आपका सैडर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन सी लिटरेचर। तो रीड द एक्सट्रैक्ट and answer the following question. Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing and people working or dancing for their harvest. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका what can beauty be seen, तो हो जाएगा beauty can be seen in the sunlight, trees, the birds. ठीक है, corn growing and people working. अब नेक्स्ट है what are ब्यूटीफुल थिंग्स, तो ये हो जाएगा आपकी ब्यूटीफुल थिंग्स ये सभी हैं द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग, तो ये आ जाएगा आपका सेकंड का आंसर। नेक्स्ट है आपका थर्ड, व्हाट इज द रीजन ऑफ डांसिंग इन द पोइम, तो डांसिंग किस लिए, डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट के लिए। ठीक है, उनकी फसल कटने वाली थी तो उसके लिए वो क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे। बट इज द मीनिंग ऑफ हार्वेस्ट, तो हार्वेस्ट का मीनिंग हो जाएगा आपका द कटिंग ऑफ क्रॉप्स, फसल कटने वाली थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है रीड द लाइन्स गिवन फ्रॉम अ स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी ही गिव्स द word has always heard the talk of robbers. He imitates them and talks about robbing people. The other one has repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram. Who said the above words to whom? तो इसका आंसर हो जाएगा the holy man said to the king. अब नेक्स्ट है नेम द टाइटल ऑफ द स्टोरी, तो इस स्टोरी का नाम था आपका द टेल्स ऑफ टू वर्ड्स, आपकी सप्लीमेंट्री की बुक में है ये स्टोरी। व्हाट डिड द फर्स्ट वर्ड लर्न फ्रॉम द रॉबर्स, ही लर्न टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन है इसका, व्हाट डिड द सेकेंड वर्ड learn from the sake, the second word learn always welcome people to the ashram. ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, आपको किसी 5 क्वेश्चन के क्या करने हैं, आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका व्हाट वाज पैट्रिक विश, तो क्या विश थी पैट्रिक की, तो पैट्रिक विश द लिटिल मैन एल्फ, ठीक है, क्या नाम था उसका, एल्फ, शुड बी all his homework till the end session, sorry. Next है why did Taro ran in the direction of the stream, तो इसका आंसर हो जाएगा Taro ran in the direction of stream because he had never heard before that sound of falling water. He was thirsty also. Where was Kalpana Chawla born? Why is she called an Indian American? Kalpana Chawla was born in Karnal, Haryana. She was born in India but married an American and become a naturalized citizen. So she is called an Indian American. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका why do you think the writer visited Miss Beam school? तो the writer visited Miss Beam school because he heard a lot of good things about the school. नेक्स्ट है वाई डिड एम्परर रिवॉर्ड तारो, तारो ऑनर्ड एज एंड ओबेड हिज पेरेंट सो द एम्परर रिवॉर्ड हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिड द डॉग फाइनली चूज हिज मास्टर एंड वाई, ही फाइनली चूज मैन एज हिज मास्टर बिकॉज वन डे ही रियलाइज्ड दैट लॉइन वॉज अफेयर्ड ऑफ मैन एज ही वॉन्टेड टू सर्व समवन who was the most powerful and stronger than anyone on earth. He chose man as his master. ठीक है,